Dear students, today we are going to start with the first lesson of Maths 1. Yes, right? That is linear equation in two variables. So, linear equation in two variables. Now children, let's try to understand what is the meaning of each and every term. Linear means power is always 1. Variables, there are two variables. It is of the form ax, I will write this way, ax plus by plus c equals to 0. For example, 5x 3y plus 15 equals to 0. बच्चों, in this equation, when I write plus sign, it becomes two term. This is first term, this is second term, now again plus sign, now it is third term. Plus decides how many terms are there. If suppose I am writing 5 into 3, this is only one term. But if I write 5x plus 3x or 3y, here also I will write y. So it becomes two terms. 7x into 2y. This is one term. But if you write 7x plus 2y, it becomes two terms. So on this basis, here we can see that we are having three terms. Every term is having, now here first term is having a variable, an alphabet, x. Here also another alphabet, that is y. Their power is 1. Hence we are using the word linear. And there are two alphabets, no? One is x, other is y. Hence we are writing two variables. Variables means if you want, you can change the value of x. Whatever you want, you can write. You can put here 1, put 2, 3, whatever you want, you can put. So 5x plus 3y equals plus 15 equals to 0. This is the example of the linear equation in two variable. So now children, let's begin with the numericals. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए. और बच्चों एक बात का आप ध्यान रखोगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं करूंगा आप सबसे पहले खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करो. अगर नहीं आएगा फिर आप दोबारा देखो. एक बार पहले क्वेश्चन समझ लिया, फिर उस क्वेश्चन और उसके जैसे और क्वेश्चंस अपने मन से आप ट्राई करते रहो. जब गाड़ी रुक गई, अब नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, then you again start the video and see the questions. So चलो पहला क्वेश्चन हम सीख लेंगे और उसके बाद के क्वेश्चंस आप पहले खुद ट्राई करोगे, उसके बाद तब वीडियो को देखोगे. ठीक है, चलो स्टार्ट एवरीबॉडी. चिल्ड्रंस, from exercise 1.1, I'm going to take first question. 1.1 का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं. What is that question? 5x plus 3y equals to 9. Also they have given 2x minus 3y equals to 12. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो लोग? We have to find the value of find x and y. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे.
कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं, बात की बात है। अभी चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रंस, while solving the question, if I add these two, इन दोनों को क्या करूं मैं, ऐड कर लूं। ऐड करने से देखो तुम एक फायदा क्या देखोगे, 3y प्लस है और 3y ही क्या है, माइनस है। सो दीज टू नंबर्स विल गेट कैंसल्ड एंड हियर आई एम गोइंग टू हैव 5x and 2x as 7x. Since we are adding, so every term we have to add. You have to add 5 and 2, plus 3 and minus 3, 9 and 12. Now tell me, 9 and 12 after adding, what you will get? 21. Now students, we have got a situation where 7x is 21. 7 is here in the multiplication form. So 21 upon 7. 7 1 ja 7. 7 3 ja 21. So x is going to be what? 3. So we were given the task to find x and y, and we have calculated x as 3. Now students, in any of this equation, put the value of x. Chalo, for example, I am taking this one, first equation. 5x plus 3y equals to 9. 5. At the place of x, you have to write 3. So if I am writing 3 plus 3y equals to 9. Now 5 3 ja 15, 3y equals to 9. Now 3y equals to 9. This 15 is plus, will go other side, it will become what? Minus. Now 15 has gone to other side, it has become minus. So 3y equals to 9 minus 15. What we are getting is minus 6. Correct? So y is going to be minus 6 upon 3. Here it is multiplication. So it will go other side and it will come in the denominator. So cancel it. 3 2 ja 6. So y value is minus 2. Now students, we have to write our final answer. X value was 3 and y value was minus 2. Put your answer in a box. Here you have completed your first question. Okay, so let's move for the next question. Dear students, here they are asking you solve the following equations. First question is 3a plus 5b equals to 26. A plus 5b is 22. You can see that 5b and 5b, they are having the same coefficients. Correct? This 5 is the coefficient and here also 5 is the coefficient and these numbers are same. So students, what we will be doing, if suppose this is your first equation and this is second equation, so you write first minus second. From first equation we are subtracting second equation. This will become 3a plus 5b equals to 26. Here I will write a plus 5b equals to 22. Subtraction means you are changing sign of this equation everywhere. The second equation ka sign will change. Correct? When we subtract, sign will change. So now this is 3a, this is minus a.
3a minus a will become what? Tell me. 2a. Am I right? 3a minus a is what? 2a. Similarly, 5b minus 5b. Forget this plus now. We have changed the sign. Every component, every term sign has been changed. हर एक टर्म का साइन हमने क्या किया? चेंज किया. जब आप माइनस करोगे तो हर एक टर्म का साइन आपको क्या करना है? चेंज करना है. साइन चेंज किया, यू हैव चेंज द साइन. नाउ 5b and minus 5b are getting cancelled. Here 26 minus 22 कितना आएगा? 4. Now a का वैल्यू इज 4 upon 2. 2 2 जा 4. A is nothing but a is what? 2. Childrens, out of these two equation, we can use any equation. I am using second one. I will write, put a equals to 2 in equation second. सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे? ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. तो देखो इक्वेशन क्या था तुम्हारे पास? a प्लस 5b इक्वल्स टू 22. ए की जगह पर जब तुम 2 लिखोगे 5b इक्वल्स टू 22. यस, this 5b will be as it is 22 minus 2 है ना. ये 2 यहां पर है, वहां पे गया तो क्या बन गया? क्या बना बच्चों? -2. अब 5b कितना रहेगा बोलो जरा? 20. अब यहां पे ये दिस इज व्हाट? अ मल्टीप्लीकेशन. सो b इज गोइंग टू बी 20/5. अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं. ए हो गया 4. सो बी का आंसर आ गया 4. तो अब आंसर हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? देखो फाइनल आंसर ए वॉज 2 एंड बी इज 4. ये हमेशा फाइनल आंसर बच्चों अपने एक बॉक्स में लिखो, वहां पे बता दो इट इज आंसर, सो दैट टीचर को इजी पड़े ये ढूंढने के लिए कि इस बच्चे ने आंसर कहां लिखा है. सो b इज 4, उसको भी बॉक्स में कर लेते हैं. a इज 2 और बाद में फिर आप आंसर में a और b की वैल्यू पुट करोगे. सो बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है. और उसके बाद फिर भी अगर नहीं आए तो आप मुझे पूछोगे, बट मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपको जरूर आएगा. यस, अगर आपको फिर भी चलो किसी वजह से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ लो मुझसे. वीडियो में जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो लिख के दो, हम उसको मॉडिफाई करके देंगे. खाली एक काम करो कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करके ले लो बच्चों, सो दैट नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें. और आपके जो भी फ्रेंड्स हों जिनको आज तकलीफ आ रही है, उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करो. जिनको जरूरत है उनको फॉरवर्ड करो, सो दैट उनकी स्टडी में आप एक सपोर्ट कर सको. सो बच्चों, अब हम एक नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. बच्चों चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. Now 1/3x y 10/3 2x 1/4 y 11/4. कुछ भी सिमिलर नहीं दिख रहा है. इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे 2x plus 3y equals to 0, 4x minus 3y equals to 0, या सपोज करो 5 या 6. ऐसे क्वेश्चन होते थे जहां आपको पता था ऐड करोगे तो ये y हट जाएगा, x की वैल्यू मिल जाती थी. बट इसमें तो सब अलग अलग दिख रहा है.
सो हम लोग इस क्वेश्चन को बच्चों दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड, मैं दोनों मेथड आपको सिखा दूंगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, आप उस मेथड से आगे बढ़ना। सबसे पहले I'm writing 1/3x plus y equals to 10/3. Now only y, मैं खाली y को उसकी जगह पे रखता हूं। Here I'm having 10/3. ये पूरा 1/3x को मैं उधर लेके जाऊं, so it becomes minus 1/3x. Yes, this is what we are taking from the equation 1. Now put y equals to 10/3 minus x/3 in equation second. कोई बच्चा पूछेगा सर ये x/3 कहां से आ गया? ये बच्चों यही है, ये x का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर करोगे तो x हो जाएगा ना x/3। 1/3x के बदले हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 1/3 इंटू एक्स को क्या बोल सकते हो? x/3। तो मैंने वही किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, जहां पे y है वहां पे। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y इन द सेकेंड इक्वेशन। So that is going to be 2x plus 1/4y, which is 11/4. Now 2x plus 1/4. What is the value of y, children? Value of y is this much. So ये पूरी वैल्यू हम किसकी जगह पे लिख रहे हैं बोलो? y की जगह पे, which is 10/3 minus 4/3. This is 11/4. यस, क्या किया बोलो बच्चों? हमने जस्ट फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट है ना, ये वाला इक्वेशन, इसके अंदर y की वैल्यू फाइंड की। कैसे? इसको उधर ले जाके। अब y का जो भी आंसर मिला दैट वी आर पुटिंग इन द सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन में हम y की जगह पे ये वैल्यू रख रहे हैं। अभी देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पे 2x प्लस, नाउ दिस वैल्यू वाज 10/3, इट वाज 10/3 माइनस x/3। सो इसमें देखो डिनोमिनेटर तो सेम है ना, 1/4 ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर मतलब ये बेस तो सेम है, सो इट बिकम्स 10 माइनस x इक्वल्स टू 11/4। अभी बच्चों खाली हम लोग इस टर्म का ऐसे ही कॉपी करेंगे। 1/4 है, 10 माइनस x/3 है। देखो जब मल्टीप्लाई रहेगा ना, देखो a/b c/d ऐसे मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करते बोलो? We multiply numerator to numerator and denominator with denominator. So here also it is a multiplication. So 1 का multiply here you have to do and 4 का multiply here. So it is going to be 10 minus x upon 4 3 12, which is 11/4. ठीक, क्या किया हमने बोलो? दिस 2x एज इट इज, यहां पे ऊपर का टर्म ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा? देन यू मल्टीप्लाई 4 with 3 एंड नाउ व्हाट यू आर गेटिंग? 12। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये नंबर ऐसे ही अभी रहने दो, 2x ऐसे ही रहने दो। अभी देखो एक बार मैं यहां लिख लेता हूं, 10 माइनस x अपॉन 12 इक्वल्स टू 11/4। अभी देखो हम क्या करेंगे, ये 2x अपॉन 1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? वी कैन राइट
Now children, you just multiply this 12 with this one and this one with here. मतलब a upon b plus c upon d रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना हम लोग. Yes. So let's do the cross multiplication. ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अभी. So 12 2 जा कितना बोलो. आंसर तो देते रहना है बच्चों. वीडियो देख रहे हो ना, तो भी आंसर देना है. ऐसा मत समझो कि विनोद सर हमारे घर पे तो आके देख नहीं रहे हैं. मैं तो देख लेता हूं मन से. ठीक, तो आंसर दोगे तभी तुम इस लिंक से जुड़े रहोगे, तभी तुम्हें समझ आएगा. सो कीप ऑन आंसरिंग टू द क्वेश्चंस. सो 12 2 जा 24 लिख लिया. ये 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया. कितना हो गया बोलो. 10 माइनस एक्स. 12 1 जा 12 लिख दिया. ये क्या है बोलो. 11/4 है कि नहीं बोलो. अभी देखो बच्चों, दिस इज 24x, दिस इज माइनस एक्स. कितना हो जाएगा बोलो. सोच के बोलो. क्या पूछा मैंने. 24x माइनस ये x. ये बन गया भाई 23x. ये प्लस 10 तो इधर है, 12 इधर है, 11/4 इधर है. यस. अभी देखो बच्चों, ये 12 ना इधर से हम उधर भेजेंगे. 23x प्लस 10 इक्वल्स टू 11/4 इंटू 12. अभी देखो इधर कहा था. डिनोमिनेटर में है, उधर जाके क्या बनेगा. न्यूमरेटर में जाएगा, है ना. इधर डिवाइड है तो उधर क्या बनेगा. मल्टीप्लाई. सो 4 का टेबल पढ़ो. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. यस और नो. नाउ इट इज 23x प्लस 10 इक्वल्स टू 33. कैसे 33 आ गया सर. 11 इंटू 3 तभी आया 33. अभी देखो, ये देखो सब बच्चों को हंसी आ गई. आ गई हंसी सबको. कोई बात नहीं, तो वो हंसी आ गई. ये 10 ना वो बाजू चला गया. तुमने ध्यान नहीं दिया. देखो ये 10 क्या है. प्लस है. उधर गया तो क्या बना. -10. नाउ 23x इक्वल्स टू 23. ये देखो x का वैल्यू आ गया 23 अपॉन 23. कैंसिल करो 1. तो x का आंसर कितना है बच्चों. 1. इतनी मेहनत किया सर, आंसर क्या मिला. 1. ओके. अब बच्चों हम क्या करेंगे. ये x का वैल्यू जो 1 मिला है, इसे क्या करोगे बोलो. कोई भी इक्वेशन में पुट करोगे. पुट करने से क्या होगा. y मिल जाएगा. सो मैं थोड़ा सा यहां मिटा दूं, थोड़ी सी जगह चाहिए है मुझे. तो ये लो मैंने इतना मिटा दिया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट 2x प्लस 1/4 y इक्वल्स टू 11/4. यहां बोल दो पुट x इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या मिला बोलो. चलो जल्दी जल्दी बोलो. x की जगह पे 1 रखो. 1/4 y इज व्हाट 11/4 है कि नहीं. 2 1 जा 2, y/4 11/4. अभी देखो बच्चों, ये y/4 को ऐसे ही रहने दो. ठीक है. ये 2 को वो बाजू लेके जाओ. 11/4 -2. ये इधर थोड़ा सा काम करती है. y/4 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इधर. 11 - 8/4. y/4 इक्वल्स टू 11 - 8 आया 3/4 है कि नहीं. 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो. तुम ही बोलो. 11 - 8 आ गया 3. अब ये 4 वो बाजू गया. y इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4 कैंसल कर दो. y कितना आ गया. आया ना 3. आंसर व्हाट इज द आंसर बोलो. क्या आंसर है बोलो. x इज 1, y इज 3. ये हुआ. अभी क्वेश्चन आया सर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मेथड यूज करना है. बच्चों
अगर सपोज करो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 एंड 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 18, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन रहता, तुमको दिख रहा है ये दोनों सेम सेम कोएफिशिएंट है ना, तो फिर पहले वाले मेथड से जाएंगे। और अगर सब अलग अलग दिख रहा है ऐसा एकदम हॉरिबल, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएंगे। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे मेथड कोई भी यूज करो, कोई बात नहीं, आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन लूंगा मैं इस ग्रुप का, लेट्स बिगिन विद दैट। बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, 99x 101y इक्वल्स टू 499, 101x 99y इक्वल्स टू 501। ओहो, कुछ लोग तो डर रहे हैं, सर इतना बड़ा बड़ा नंबर हम कैसा सॉल्व करेंगे। सो डरना नहीं बच्चों, मैं हूं, डरना नहीं, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, वो तो दिख रहा है मुझे भी, अयो बाबा बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन डरने का नहीं, डरना मना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये इक्वेशन 1 बोलेंगे एंड वी विल टेक दिस एज इक्वेशन 2। पहले वाले को क्या बोलेंगे, फर्स्ट वन इज द इक्वेशन 1 एंड सेकंड वन इज द इक्वेशन 2। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। So 99x plus 101y equals to 499। अभी देखो इधर 101 था तो इधर आ गया, मतलब it has become 101x plus 99y equals to 501। ये नंबर का एक खासियत रहता है, ये टाइप का क्वेश्चन, इसका कोएफिशिएंट y के पास आएगा, y का कोएफिशिएंट x के पास आएगा। इट इज लाइक दैट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐड कर रहे हैं ना, वी आर एडिंग इट। 99x 101x कितना हो गया, तुम बोलो चलो, यस, इधर बोलो 200, इधर बोलो चलो, देखते कौन बोल रहा है, 1000, यस। अरे बाबा ये 1 दे दो, 500 हो गया, ये 1 दे दो, ये क्या बन गया 500, ये भी 500, 1000, ठीक है। डिवाइड बाई 200, किससे डिवाइड करेंगे, सबको। ये इक्वेशन जो आ रहा है ना, दैट यू डिवाइड एंटायर बाई 200। इसको अगर मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं, अभी वो भी नहीं बोलता हूं, जस्ट आप इसको डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा बोलो, इट विल बिकम x, दिस विल बिकम y, दिस विल बिकम 5। डिवाइड करके देखो, 200 को डिवाइड करोगे 200 से तो कट जाएगा 1, ये भी कट जाएगा 1, ये कट जाएगा तो बचेगा 5। डिवाइड करके हम कंफर्म करेंगे। अच्छा, अभी जैसे बच्चों हम लोग ने पहले ऐड किया, वैसे ही अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट या सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 99x 101y इज 499। क्या नंबर है, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। अभी देखो बच्चों, हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ना, सो आई एम चेंजिंग द साइन of each and every term. I'm changing the sign of each and every term in this one. क्योंकि ये सेकेंड को ही माइनस कर रहे थे ना, इसके लिए, बाकी ऊपर का जैसे है वैसे ही रहेगा। 99x माइनस 100, बोलो 99 माइनस 101 कितना आएगा, सोच के बताओ मुझे। 2 आएगा ना,
ये लिखा देखो -2x। अभी कॉलेज सॉल्व, आपने -2 क्यों लिखा? बोलेंगे बच्चे मेरे लाल, ये बड़ा नंबर है कि नहीं है? जो बड़ा नंबर रहेगा उसी का साइन आएगा ना, बड़े नंबर का साइन आएगा ना। सो वी आर पुटिंग -2। अगर x होता तो हम लोग लिखते -2x। इधर भी माइनस करो, क्या आएगा बोलो? 2y, है कि नहीं? सोच के बोलो, आएगा कि नहीं? और प्लस ये बड़ा नंबर है ना, इसके लिए +2y। अभी बच्चों एक काम और करेंगे हम लोग। 499 में से 501, यस -2। अभी डिवाइड करो, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया बोलो? x + y -1। अभी चेंज करता, अगर मान लो मैं माइनस से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? जरा एक मिनट करके बता रहा हूं तुमको। -2x 2y -2, सबको -2 से डिवाइड करो, सबको डिवाइड करो। ये तो पूरा का पूरा उड़ा देगा, इधर पूरा का पूरा उड़ा देगा, ये भी। अभी क्या बच गया? x, ये माइनस देखो है -y, ये क्या है? माइनस माइनस कैंसल, क्या बचा? 1। यस और नो? अभी ये इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन बोलता हूं। ऑलरेडी ये फर्स्ट था, सेकंड था, इसको फिर क्या बोलता हूं? थर्ड। अभी देखो फर्स्ट, अब ये थर्ड और फोर्थ, कितना छोटा छोटा इक्वेशन, इधर कितना बड़ा बड़ा इक्वेशन। सो लेट्स सॉल्व। नाउ वी विल सॉल्व भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, x + y = 5, x - y = 1। कोई भी स्टूडेंट पूछेगा सर आपको कैसे मालूम ऐड ही करना है? बच्चों मैंने पहले देख लिया था, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। जब भी हम लोग इसको ऐड करेंगे ना, एट दैट टाइम दिस विल गेट कैंसल्ड। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल। सो इधर क्या बचेगा? तुम ही बोलो। इट विल बिकम नाउ 2x, हियर 5 + 1 is 6। ऐड कर रहे ना बच्चों। सो x की वैल्यू कितनी होगी? 6/2, 2 3 जा 6, तो x कितना मिला बोलो? 3। अब इसको ना किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इधर भी पुट करो चलेगा। इन एनी इक्वेशन वी कैन पुट x - y = 1, put x as 3, so 3 - y = 1। now I can say here, ये y ऐसे ही रहने दो, चलो 1 - 3, ये है ना 3, it is going to other side, so -y = -2, y is what? 2। तो फाइनल आंसर लिखेंगे अभी, x is 3, y is 2। So students, childrens, बच्चों, we have completed this question। अभी इसके सिमिलर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप ट्राई करोगे। सो अब तुम्हारा होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे? पूरा एक्सरसाइज 1.1। और उसके कितने क्वेश्चंस हैं बोलो? देर आर आई थिंक 10 क्वेश्चंस आर देयर। So solve all the questions, the entire 1.1 you have to solve, and you have to submit by tomorrow up to by 4 o'clock. So बच्चों, I will be waiting for your homework. Solve it. If you are having any doubt, ask me. If you have not having my number, note it down. Anytime you can call me and clarify your doubts. If you have not subscribed the channel, please do it. And share the video with your other friends so that they can also do their study well. ठीक है बच्चों? सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। By that time, stay home, stay safe, and keep on studying. All the best.